मैं કેટલા આવે છે? 10. 10. સારું, ચલો તમે જે ડાઉટ કરો છો એ વસ્તુ સમજો કે તમારા ફેવરમાં આપણે ચેન્જ કરી દઈએ તો કેટલા આવશે? ના સર, ચેન્જ નથી કરવા મારે, માર્ક્સ તો બરાબર છે, ખાલી પણ તમે એકવાર કહી દો કે ખોટું છે કે તો સાચું સમજો કે છે. તમે કહો છો એ વસ્તુ સાચી રાખીએ આપણે તો કેટલા થશે એમ? આસપાસ 30 જેવા થશે અગર ઠીક છે. નહીં થાય તો. ઓકે. મારા હિસાબથી કહું છું સર, અગર હા, ના ના, તમે કોઈ વાત કહો કે નથી. ખોટું છે તો પછી જવા ના ના, દઈશું એમ. સમજી ગયો હું. આ ક્યાં ફાઇનલ એક્ઝામિનેશન છે? હા, એ જ મારે એટલે ખાલી પૂછવું હતું કે આન્સરમાં એવું ચાલે કે ના ચાલે. સચ્ચી આજે જોઈન નથી થવાની ઓનલાઈન? થવાની છે કે નથી થવાની હતી? કોઈ વાત નહીં. આ વીકની ટેસ્ટ થઈ ગઈ કે બાકી છે? થઈ ગઈ ને? કેવી રીતે બધાને એક્ઝામ સારી રહી ગઈ કાલ? आपने दिया, हम या नहीं दिया? आपका भी वो फीफो मेथड चल रहा है अभी, ऐसा है? हाँ, नेक्स्ट वीक में टेस्ट भी डिस्कस करेंगे આપણે કે જેની પ્રિપેરેશન તમે અત્યારથી શરૂ કરી શકો તો મંડે ટેસ્ટ હશે તો એમ વિચારીને. ચલો તમે લોકો કહો મને કે કયા ચેપ્ટરની ટેસ્ટ લઈ શકાશે? સોરી, લોમાં ડિવિડન્ડ. क्वेश्चन जो करता है आप इतना नहीं क्या ऐसा सिखाया भी નથી આજે ની નોટ્સ પણ અમારી અડધી બાકી છે, નથી સમજ પડે તો સરે આજે ડિસ્કસ કરવાનું પણ નથી. ઓકે, ચલો એટલે ડિવિડન્ડ નહીં. હા, સમજી ગયો સમજી ગયો સમજી ગયો સમજી ગયો. ના ના, બરાબર, સાચી વાત બોલવાની. પરફેક્ટ છે, સાચી વાત કહી દેવાની તમને. આ પછીથી આ રીતે પાછળથી સાંભળવું પડે કે આટલા ઓછા માર્ક આવ્યા, એના કરતા પહેલેથી કહેવું એ સાચી વાત છે. ચલો બોલો નેક્સ્ટ. તો ડિવિઝન નહીં તો કઈ ટેસ્ટ? हम लोग लिवरेज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन में लिवरेज का 3G आ गए। चलो मेरे को बेटा बुक दो ना, मैं दे रहा हूँ 5 वापस। थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? जी। चलो 3G से शुरू करते हैं। अक्षर पटेल लिमिटेड है ना, अक्षर लिमिटेड है सेल्स ऑफ बोलो कितना? 68 lakhs. Variable cost is 60%. Fixed cost is 16,32,000. Cost of capital comprises of 12% long-term debt, 1 lakh preference shares of ₹10, getting a dividend at the rate of 10%, and 1,50,000 equity shares. Income tax rate is 30%. At current level of the sales, determine interest, comma, the EPS, comma, amount of debt. If a 25% decline in sales will highlight the portion wipe out क्या EPS. अपने आप आंसर करने का ट्राई करो, फिर मैं करके देता हूँ. अभी क्वेश्चन चालू करते हैं. आंसर ट्राई करो. हो गया आंसर? मैंने कहा होमवर्क में बोला था ये. चलो
શું વાત છે સ્નેહા, જબરજસ્ત. મને લાગે છે કે 5 હવે તમારો ફેવરેટ નંબર થઈ જશે હા, સ્નેહા. 5 તમારો ફેવરેટ નંબર થઈ જશે. ચિંતા નહીં કરવાની હો, સ્નેહા, આપણે બધી વસ્તુ ઇમ્પ્રુવ કરી દઈશું. કરવી તો પડશે જ. હમ. हो गया आपका? चलो क्या Sachi, good afternoon. Sachi, good afternoon. Thank you. Chalo. 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 Anybody can tell me what is the EPS? Anyone? हाँ बोलो. Thank you very much. चलो 4 रुपी 36 पैसे फर्स्ट आंसर है. और कोई आंसर है किसी का? How many students agree with her? 4 रुपी 36 पैसे. बेटा स्नेहा आपका आंसर? सर मैं हमारा क्वेश्चन जो 25% डिक्लाइन नहीं फाइंड करना, ओरिजिनल फाइंड करना. हाँ तो ओरिजिनल ज करवाऊं છે. तो 4.9. ओके बेटा, ओरिजिनल के फाइंड करना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एट करंट लेवल ऑफ द सेल्स, ऐसा पूछा है. चलो, एनीबॉडी हैविंग डिफरेंट आंसर? વિશ્વ તમે બેકઅપ જોઈ લીધું બાકી છે? એટલે તો આ ક્વેશ્ચન તમે કર્યો કે નહીં? ના મને નથી ખબર કે 3G કરવાનો છે. એટલે પેલા રેકોર્ડિંગમાં આવ્યું નહોતું કે ભાઈ આ 3G જાતે કરો? ઓકે. ત્યાં સાચી વાત, અપલોડિંગમાં મોડું થઈ ત્યાં કરતા આ રીતે કરી નાખું. સારું સારું. અને બીજું શું કે ફાસ્ટ બી થઈ ગયું. પરફેક્ટ છે. चलो और कोई है आंसर? चलो और कोई? यशस्वी बेटा आपका आंसर? ओ त्रिशा, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन છે કે શું? આ કેમ આવું થાય? તો લેટ અસ સી. આઈ ડોન્ટ यार बहुत सारू कहेवाय. अच्छा देखो, मैं सबसे पहले ना फॉर्मेट बना देता हूँ तो मेरे को क्या थोड़ा आइडिया आएगा. सेल्स माइनस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? ईबीआईटी माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट. तो क्या मिलेगा? ईबी माइनस टैक्स, क्या मिलेगा? ईएटी. प्रेफरेंस डिविडेंड है या नहीं है? है. तो क्या मिलेगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या मिलेगा? ईपीएस. Let us see. Akshay Limited has sales of 60 lakhs and variable cost is 60%. चलो write an answer along with me अगर आपका बाकी है तो. 68 lakhs. बोलो ना उसका 60% कितना आता है? 4080. देखो दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 20.
व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट बेटा? 16 16 लाख रुपए की कॉस्ट। ईबीआईटी कितना आता है देखो तो? 10 लाख। 88,000 उसके बाद हमको दे रखा है दैट्स द 12% डेट, पर डेट का अमाउंट दे रखा नहीं है, वो हमको फाइंड करने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12%। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 12% लिख देता हूँ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीटी। चलो, इनकम टैक्स का रेट दे रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ 30% है। और कितने हैं दे रखे हमको? ₹1 लाख प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ ₹10, कैरिंग रेट ऑफ डिविडेंड 10%। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा? 10,000 आएगा शायद। चलिए 10,000 आप कैसे लेके आए? 1 लाख इंटू 10%। इनकम टैक्स का रेट कितना है? 30% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी दे रखे ना शायद क्वेश्चन में, 1,50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां तक का सबको क्लियर है? जाऊं आगे? इसको डाउट क्वेरी? चलो चलो, सची का आंसर आ गया, ₹3.63 है। आपका भी वही आंसर? अच्छा ओके। मेरा आंसर में एक है 4.96 4.96। चलो, तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, लेट्स से अगर सेल्स में 25% का रिडक्शन होगा, तो ऐसा दे रखा है डेट से हमारा ईपीएस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो कैन वी से दैट से इनडायरेक्टली हमको दे रखा है दैट से व्हाट इज डीसीएल, है ना? सेल्स और ईपीएस का रिलेशनशिप दे रखा है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं हमको डीसीएल दे रखा है? तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, देखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डीसीएल। सर डीसीएल कैसे होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, आई एम सॉरी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस divided by percentage change in sales. Yes, no? Yes. I request all of you to write down answer along with me. What is percentage change in EPS? 100% नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? -25%। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इट इज 4? सिंपल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? सिंपल। किसको डाउट या क्वेरी हो तो पूछेगा मेरे को। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डीएफएल। सर डीएफएल कैसे होगा? डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल into DFL, है ना? Multiple methods are there by which you can do answer. 4 is equal to C upon EBIT, very good, into क्या करेंगे? DFL। DFL का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। देखो तो C stands for contribution कितना है? 7 लाख 27 लाख 20,000। और EBIT बेटा कितना है? 10,88,000। सॉरी, तो डीएफएल को उधर ही रखेंगे और बाकी के वैल्यूज को क्या सामने की तरफ शिफ्ट करेंगे। 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1.6 आता है बराबर। चलो किसको वापस समझना है?
समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा कि करंट सेल्स जो होगा वो 25% से गिरेगा तो ईपीएस हमारा जीरो हो जाएगा। नहीं, जो भी वैल्यू है वो पूरा का पूरा जीरो हो गया तो कितना चेंज हुआ? 100% का चेंज हुआ ना। आधा हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? 50% का चेंज हुआ। ये तो पूरा ही गायब हो गया, यानी कितना चेंज हुआ? मैंने सर बोला है कि मतलब ईपीएस जीरो हो जाएगा। वाइप आउट है तो सेल्स विल वाइप आउट और देखो क्या दे रखा है, हाँ सर। 25% डिक्लाइन इन EP सेल्स विल वाइप आउट ईपीएस। चलो चलो, किसको बाकी है कॉपी करने का? चलो डीएफएल आ गया तो उसके बाद क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी देखो कितना हो गया सिंपल। हनी पूनम, पूनम 19 तारीख आने वाली थी ना? वो आ गई हुई है, आज नहीं आता। आज तो नहीं। ऑनलाइन नहीं है अभी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके। ये सॉरी पहले हाँ बरोबर है। ये ईबीटी भी कर सकते हैं। बरोबर है। चलो देखो, ईएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। यस नो? इज इट ओके ऑल ऑफ यू? देखो तो डीएफएल का वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 1.6। ईबीआईटी का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? 10,88,000 डिवाइडेड बाय 10,88,000 माइनस एक्स करेंगे। रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 10,000 रुपए शायद। और इनकम टैक्स का रेट बोलो सिंपल है डिफिकल्ट है? सिंपल हो गया ना अभी, एक वर्किंग हो गया था सिंपल। जिनल यू फाउंड करेक्ट आंसर, तो आपका आंसर गलत था। क्या भूल पड़ी तुम्हें, समझी नहीं तुमने? देखो तो 10,000 अपॉन 0.7 कितना आता है? 10,88,000 माइनस दिस, सॉरी हाँ 10,000 माइनस दिस अमाउंट 14,286 10,73,713 और 10,88,000 अपॉन 1.8, सॉरी 1.6, 6,80,000। જીરો તમને ખ્યાલ નથી પડતો એવું થાય છે? ओके देखो तो एक्स का वैल्यू कितना आता है? उसके बाद आएगा कैलकुलेशन ऑफ डेट। कैसे करेंगे? इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। જો મારી બી ઘણી વાર છે ને ભૂલ થતી જ હોય છે, એટલે તમને ક્યાંય લાગે ને કે સર તમે ભૂલ છે તો મને કહેજો। એવું ક્યાંય લાગે છે બેટા? સર આપણે ઈબીટી પૂછી ને હની કરીએ તો પ્રેફર કરે આવે
ईबीटी का वैल्यू कहाँ है आपके पास? DFL का वैल्यू तो हमने DFL is equal to EBIT अपन EBT वाले फॉर्मूला नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रेफरेंस रेट दे रखा है ना। नाउ हाँ करो करो, एक मिनट जाओ आगे चलो। कितना था डिबेंचर्स? हाँ 32 लाख 80,009। चलो किसको बाकी है, जाओ आगे। झील तुम्हारे लखन रही हो जाकर श्योर। किसको बाकी लिखने का? चलो किसको बाकी लिखने का? चलो इंटरेस्ट का अमाउंट बताइए ना। 3,93,747 ईबीटी का वैल्यू बता। 6,94,286 6,94,000। इनकम टैक्स का अमाउंट 2 लाख 8,286 अर्निंग आफ्टर टैक्सेस बेटा 4,86,000 ईपीएस का वैल्यू 3.17 anybody had found 3.17? Very good, 3 students। Happy? हाँ तो अब चाले। हाँ चाले हाँ चाले चाले। That presentation is also accepted। तो किसको बाकी है?
तो रखो इसको बाकी तो 3H Alpha Limited has provided you the following information. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है हमको एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है अल्फा लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, यानी कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। 15% डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 750 रुपीज पर डिबेंचर। एंड डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 15% और 10,000 डिबेंचर्स हैव बीन इशूड और 750 का फेस वैल्यू। सेल्स दे रखा है 50 लाख यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट हमको दे रखा है 12.5 रुपए और टोटल फिक्स कॉस्ट का भी वैल्यू हमको क्वेश्चन में रेडीमेड दे रखा है। So this is parts of the information provided to us. Due to recent policy changes and entry of the foreign competitors, in the sector, Alpha Limited expects sales may highlight the portion decline by 15% or 20%. तुमको ऐसा लग रहा है कि सेल्स हमारा गिरेगा कितने परसेंट से, या तो 15% से या तो 20% से। सेलिंग प्राइस अदर कॉस्ट विल रिमेन सेम, ये देने का जरूरत नहीं है। इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट द सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई भी फर्क नहीं होता है, इन टोटल फिक्स कॉस्ट में भी कोई फर्क होता नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, यानी हमको फाइंड क्या करना है, रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर, DOL, DFL separately if the sales decreases by 15%, sales decreases by 20%। यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक आपको रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर फाइंड करना है। If at all the sales decreases by 15% and if sales decreases by 20%, ऐसा हमको करना है। और दूसरा क्या दे रखा है उन्होंने कि नए सेल्स लेवल के ऊपर आपको लिवरेज का कैलकुलेशन करना है। कौन कौन सा, DOL और DFL। ठीक है ना, चलो आप लोग अपने आप ट्राई करो आंसर करने का, फिर मैं करके देता हूँ। रुचि हो जाएगा ना आंसर? चलो आज सब लोग होमवर्क बुक लेके आए ना? हाँ ना, मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम। स्नेहा होमवर्क बुक लेके आए नहीं लेके आए? हाँ जो पढ़से सही बात है। वो पॉलिटिक्स क्या है कि वो સાચી વાત છે। હું તમને કહું લાઈફમાં પહેલી બેચ ભણાવું છું, મને છે ને ભણાવવાનો કોઈ એક્સપિરિયન્સ જ નથી સાચે। હું પહેલી બેચ ભણાવું છું, મને સહેલી આવડતું જ નથી ભણવું। હું કેટલો યંગ લાગુ છું તમને કે ભાઈ આ પહેલી જ બેચ હશે સર? નહીં, हल्की साची बात है कि नहीं? हाँ, मैंने कहा पे ऐसा पूछ रहा हूँ, मैं इतना यंग लग रहा हूँ ना कि ऐसा हूँ।
है ना? सची मैंने वो क्वेश्चन का फोटो मैसेज किया। सची વૃત્તિ જાતે આન્સર કરી આન્સર જો બોર્ડ વર્કિંગ કોના માટે કરું છું? તમારા લોકો માટે જ કરું છું બેટા, તો વેઇટ કરો બેટા. હરપ્રીત હેપી नहीं कर रही। सर वो 175 में कंफ्यूजन था फिर। ये नहीं किया था। मैंने क्या बोला? आई एम बीइंग पेड फॉर explaining all these things, so let me discharge my duty. Tax rate कितना है? सर हम तो खबर है ऑपरेटर चालू है तो और कर 1 करोड़ 51 लाख। सर हाँ करो, एक बेटा बेटा ठीक है ना. सेल्स अपने को दे रखा है 50 लाख, इंटू क्या करेंगे 20 रुपए. वेरिएबल कॉस्ट अपने को क्या दे रखा है 50 लाख इंटू 12.5. दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन. माइनस क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट. तो क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. उसमें से क्या डिडक्ट करेंगे? इंटरेस्ट. तो क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्स करेंगे. कौन से रेट से? 20%. तो क्या मिलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस. अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से
दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमको क्या मिलेगा? अर्निंग पर शेयर। कौन सा बेटा? सेकेंड और थर्ड पार्ट बेटा? नहीं, उसमें तो अपने को रिवाइज DOL और DFL फाइंड करने का है ना। सेल्स रिड्यूस होगा, उसके बाद DOL और DFL का वैल्यू फाइंड करने का है, यानी पूरा टेबल ही बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो परसेंटेज यहाँ पे, क्योंकि हमको रिवाइज वैल्यूज फाइंड करना है। देखो, ठीक है ना, रिडक्शन इन ईपीएस हो सकता है, रिडक्शन इन ईपीएस हो सकता है, पर वो जो DOL और DFL उसके लिए तो पूरा वर्किंग करना ही पड़ेगा। प्रीवियस चैप्टर में प्रेजेंट पॉलिसी में होती है, डिक्रीज इंक्रीज का तरह है, जो ही लीजिए। हाँ, सेल्स रिड्यूस हो रहा है कितना परसेंट से? 15%। यानी इज इट 850 lakhs? वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। देखो तो कितना हो जाएगा? 5 करोड़ 5 करोड़ 31,25,000 अर्निंग बिफोर टैक्स, सॉरी कंट्रीब्यूशन बेटा 31 करोड़ 7 sorry 3 करोड़ 75,000। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होगा? नहीं। देखो तो EBIT कितना हो जाता है? 1 करोड़ 1 करोड़ 43,75,000। $26 lakhs अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। 1 करोड़ और 20 लाख। EPS में कितना रिडक्शन है? 29.8% परसेंटेज में। You are required to calculate the decrease in EPS। परसेंटेज करने का जरूरत नहीं होता, अगर करेंगे तो भी चलेगा, पर जरूरत नहीं। DOL का वैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि क्या दे रखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिक्रीज इन EPS, कॉमा DOL and DFL separately if the sales reduces by 15% and 20%। यशस्वी फाइन बेटा। क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। देखो तो कंट्रीब्यूशन का वैल्यू कितना है? 318.75 lakhs डिवाइडेड बाय EBIT कितना है? 143.75 lakhs। 2.20। DFL के लिए प्रेफरेंस इवेंट कंसीडर करने की जरूरत नहीं, तो EBIT अपॉन क्या हो जाएगा? EBT। DFL फाइंड करने का जरूरत नहीं। देखो तो EBT कितना है? क्वेश्चन है, व्हाट इज आंसर बेटा? 1.08।
ये 15%, वैसा का वैसा किसका करेंगे? 20%. अपने आप करो, फिर मैं करके देता हूँ। हो गया आंसर? वेरी गुड। વિશ્વ તમારે થઈ ગયું 20% વાળું બાકી છે. સારું કે તમે એબસેન્ટ હતા તો બી તમે આટલું કરી દીધું ફટાફટ. રિયલી બહુ સારું કહેવાય. વોટ ઇઝ વેરિયેબલ કોસ્ટ? 5%. EBIT? 125. EBT? 1 crore 75,000. Tax? 22,75,000. 91 lakhs. 364. One point five. 2.4. 2.4. One point 10. तो जनाब जी को हाँ. हाँ, एक कर. सची अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है बराबर? सची बेटा. सची अभी बराबर दिख रहा है स्क्रीन? તો બેટા સ્નેહા થઈ ગયું તમારે આટલું? चलो किसी को बाकी लिखने का? ओके.
क्वेश्चन नंबर 3I अपने आप करो, फिर मैं करके देता हूँ। 3I स्नेहा देखो भी चला करती है। नहीं नहीं, आपने बोला तो मेरे को अब क्या, मेरे को पता ही नहीं। Should I start? I'm just reading the question. हाँ, उसके बाद again I'm giving you time to do answer on your own. Following is the balance sheet of Exim Limited. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है कंपनी के बारे में, दैट इज कॉल्ड एक्सिम लिमिटेड, एज ऑन 31st of March. Equity share capital of rupees 100 each, and amount of rupees 20 lakhs. Reserves and surplus is given 4 lakhs. 12.5% debentures are given 40 lakhs. Current liabilities are given an amount of 16 lakhs. Fixed assets 50 lakhs and current assets of 30 lakhs. So total assets 80 lakhs and total liabilities again 80 lakhs. Excluding interest is 16 lakhs. Variable operating cost ratio is 70%. Total asset turnover ratio is 2.5. Total asset turnover ratio is indicating what is the sales of the company for every 1 rupee of the asset in the business. 2.5 is indicating that the sales is 2 rupee 50 paise for every 1 rupee of asset. तो अगर हमारा assets 80 लाख है तो सेल्स कितना होगा? 2 करोड़ इज करेक्ट आंसर. सेल्स हमको दे रखा है 2 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट हमको दे रखा है 70%, यानी कितना होगा? 140 lakhs. So 200 minus 140 क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ईबीआई. क्वेश्चन में हमको डिबेंचर्स के बारे में दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट मिल जाएगा. ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या मिलेगा? ईबीटी. इनकम टैक्स का रेट सिर्फ 30% है तो क्या मिलेगा? ईएटी. प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा नहीं है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखा है तो क्या मिलेगा हमको? अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा. तो ऐसा करके फर्स्ट आंसर हो जाएगा और फिर तीनों लिवरेज करते. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू आंसर ऑन योर ओन, फिर मैं करके देता हूँ.
हो गया आंसर, पूरा आंसर हो गया। जबरदस्त था ना मैं तो। जी जो कि તમારે મને મેસેજ કરવાનો કે સર આ વીકમાં તમે આની ટેસ્ટ રાખજો તેની ટેસ્ટ રાખજો, તમે તો કેવા મને મેસેજ કરતા હતા, મારે જ પૂછપૂછ કરવું પડે। हाँ अच्छा चलो राइट आंसर। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? टोटल असेट टर्नओवर रेशियो is equal to sales upon assets। So sales is equal to asset into turnover ratio। देखो ना असेट्स कितना है फ्रेंड्स? 80 lakhs। और टर्नओवर रेशियो कितना बताया? सो व्हाट वुड बी फाइनल आंसर फ्रेंड्स? 2 करोड़ और 200 lakhs। वहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एंड लिवरेज। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और पूरा आंसर अपना हो जाएगा। सेल्स कितना दे रखा है अपने को? 200 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट का प्रपोर्शन क्या दे रखा है? 70%। तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 140 lakhs। कंट्रीब्यूशन इज 60 lakhs। फिक्स कॉस्ट इज 16 lakhs। अगेन वो क्वेश्चन में दे रखा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 44 lakhs। What is the amount of the debt financing? 40 lakhs। 14 40 lakhs। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12 point। So what is interest amount? 5 lakhs। EBT, 39 lakhs। income tax 30%। 11 lakh 70,000। 17। 70,000। Earning after taxes 3,000। number of equity shares 20,000। 20 lakhs divided by 100, that is 0.2 lakh। So EPS is 136.5। तो ये क्या हो जाएगा? EPS हो जाएगा। उसका DOL contribution upon EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है? इट इज 60 lakhs। EBIT कितना है? 44 lakhs। देखो तो 60 upon 44 कितना हो जाएगा? EBIT upon EBT। EBIT कितना है? 44 lakhs। EBT कितना है? 39 lakhs। 1.1 डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज DOL इंटू DFL। या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। सो 1.36 इंटू 1.1 1.554। 5.4। अगर हम लोग 60 लाख अपॉन 39 लाख करेंगे तो थोड़ा सा अलग आ सकता है, बट दैट इज एक्सेप्टेबल। ऐसा इंस्टीट्यूट इज नॉट वेरी रिजिड दैट्स हमारा एग्जैक्टली ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर मैच होना चाहिए। किसको बाकी कॉपी करने का? देखो ये जनवरी 25 का एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क का, एंड दैट इज व्हाट कंपलसरी क्वेश्चन। पेपर सेल्स आपको पता है ना? नहीं पता है?
यस, नहीं तो ऑफिस के कॉस्ट टूटा है तो सीसी होगा ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी बिजनेस ऑपरेशन करने का खर्चा है बेटा। हाँ, मीन्स बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है बेटा। मतलब हमने सेल्स के परसेंटेज लेने थे। करेक्ट, सेल्स के परसेंटेज हमेशा। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो जैसे हम लोग करते हैं वैसा है। नहीं, पर नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं ना बेटा, वही है। ठीक है, चलो अब इसको बाकी है। सुबह Actually, search in hacker. जैसा कहता था बैंड इज द बिगिनिंग वालों के सबने लोग खुश था कि चैप्टर पढ़ी इटू वेट कर सकती हूँ ये विचार के पढ़ी नवाले वेट करे चाहे नऊ चालू हो सकता ताकि ये चैप्टर पढ़ी की बैंड इज द बिगिनिंग सच्ची बात है। देखो ये भी May 24 का एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ना अभी मैं आपको एग्जामिनेशन का पेपर स्टाइल बता देता हूँ। I tell students examination paper style at the start of the chapter only. Sorry, at the start of the syllabus only. However, I might have missed it in your batch. Okay, तो मैं बता देता हूँ एग्जामिनेशन का पेपर स्टाइल कैसा होता है। चलो देखो, बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि 50 मार्क का एग्जामिनेशन पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात कर रहा हूं मैं। उसमें 15 मार्क्स विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स विल बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, है ना। 50 मार्क का बाइफर्केशन है, 15 और 35। दैट इज व्हाट वी हैव। एज फार एज दिस 15 मार्क्स क्वेश्चंस आर कंसर्न, उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसमें ऐसा करते हैं, देयर विल बी 7 क्वेश्चंस जिनका 2 मार्क्स का वेटेज होगा, तो 7 2 जा 14, और एक क्वेश्चन होगा जिसका वेटेज होगा 1 मार्क का। ऐसा करके ये 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का। जहां तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सवाल है, वहां तक हमको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी अगर हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन मिस किया तो पूरा मार्क्स अपना चला जाएगा। सो एमसीक्यू के क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वो लोग हमको क्लियरली प्रोवाइड करके देते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए सिर्फ हमको आपका आंसर ही चाहिए, हमको प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट दे क्लियरली दे हैव प्रोवाइडेड। इसलिए यूजुअली हमको कोई भी वर्किंग करने का जरूरत नहीं होता है। हावेवर मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है दैट से एमसीक्यू के क्वेश्चंस के लिए भी हमको अच्छी तरह से आंसर लिख के ही करने का, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन। Now I am telling you about the MCQs of financial management. MCQs of the financial management में ऐसा है that वो लोग हमको जो MCQs पूछते हैं वो और कुछ नहीं होते हैं, पर हमारे जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं उसी को उन्होंने MCQs में डिवाइड करके रखा होता है। जैसे कि वो लोग हमको एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन देंगे और हमको ऐसा पूछेंगे दैट से यू कंप्यूट द करंट रेशियो, यू कंप्यूट द लिक्विडिटी रेशियो, you compute the debt equity ratio, you compute GP ratio, you compute NP ratio। ऐसा करके हमको एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चंस ऐसा वो लोग पूछ सकते हैं, या तो इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। लेट्स से फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इंफॉर्मेशन दे रखा होगा, एक ही क्वेश्चन होगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। या तो क्या होगा, एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कॉमन होगा और हमको लाइक उसके नीचे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑनेस्टली फ्रेंड्स आई टेल यू दैट से हमको 1% भी एक्स्ट्रा वर्किंग करने का जरूरत नहीं है एज फार एज एफएम का एमसीक्यूज आर कंसर्न। 1% भी एक्स्ट्रा वर्किंग करने का जरूरत नहीं है। जो हम लोगों का नॉर्मल वर्किंग होता है उसी में एमसीक्यू का प्रैक्टिस
हो ही जाएगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व ओवर दिस टाइम पीरियड, जो भी हम लोगों ने होमवर्क क्वेश्चंस किए आपने, इन दैट से देयर मस्ट बी सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यू, है ना। मेरे जो कनेक्टेड होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं उसपे यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट से देयर आर सर्टेन एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो वो जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, इन दैट यू कैन सी दैट इट इज द सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट से वी हैव विथ नो डिफरेंस, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि हमको प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर का जरूरत नहीं है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज आप बिल्कुल ही रेस्ट एश्योर्ड रहो, हमको कोई भी दूसरे एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते। एमसीक्यूज पूछने के लिए फ्रेंड्स उनके पास ऑनेस्टली बहुत बड़ा स्कोप होता है, सही में बहुत बड़ा स्कोप होता है। जैसे कि हमको वो इंफॉर्मेशन को जैसा दिया जा सकता है दैट अ कंपनी इज हैविंग से अनइवन अर्निंग, इन दैट केस से द कंपनी शुड इंट्रोड्यूस मोर लिवरेज, लेस लिवरेज, ऐसा हमको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। पर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमको पूछे जाते ही नहीं। अ कंपनी इज हैविंग से like unexpected future earning, in that case the company should introduce less debt financing, more debt financing, ऐसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। A company is say having let us say that's the deterioration in the profitability, what may be one of the following reason because of which the profitability is deteriorating। हमको 4 रीजन दिए जाएंगे, 4 में से ऑफ कोर्स एक सही होगा, बाकी का 3 गलत होगा। पर ऐसे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज वो लोग हमको पूछते ही नहीं। वो लोग सिर्फ हमारा जो न्यूमेरिकल होता है ना उसी को एमसीक्यू में कन्वर्ट करके दे देते। सो फॉर ऐसा है, सो यू रेस्ट एश्योर्ड दैट्स ऐसा कुछ भी हमारे साथ अनइवन नहीं होगा। दिस इज अबाउट द एमसीक्यू। चलो किसी को डाउट कोई नहीं यहां तक, जाओ आगे। चलो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये आपको चिंता मत करो। अभी आया 35 मार्क्स की बात, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 it is of 15 marks, question number 2 to question number 4 they are of 10 marks। ये जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन है 15 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये 3 क्वेश्चंस में से हमको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेंड कर, वी हैव टू अटेंड 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 3, है ना। 2, 3, 4 यानी कितना हुआ, 3 क्वेश्चंस हुआ। ये 3 में से अपने को क्या करने का है, 2 क्वेश्चन अटेंड करने का है। ये दोनों क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा, 10 मार्क। सो 2 इंटू 10 कितना होगा, 20। ऐसा करके 35 मार्क्स का क्वेश्चन। ये जो 35 मार्क्स है फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव, उसका बाइफर्केशन ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी कितने मार्क का, 15 मार्क। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये तीनों 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क के। ये जो 10-10 मार्क के क्वेश्चन 3 है उसमें से अपने को कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने। सो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स। नाउ जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1A, 1B और 1C 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली ये सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उसका मार्क्स वेटेज होता है यूजुअली 5, 5 एंड 5। इंस्टेड ऑफ 5, 5, 5 वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं 6, 4 एंड 5, यानी 3 में से एक क्वेश्चन 5 मार्क का और बाकी के 2 क्वेश्चंस का मिला के 10 मार्क, यानी 6, 4। वो लोग हमको 7, 3, 5 भी पूछ सकते हैं। यानी क्या होगा, दैट से ये 3 क्वेश्चंस का इंटरनल बाइफर्केशन कुछ भी हो सकता है, पर टोटल कितना होगा वेटेज, 15 मार्क का। दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन, और सारे के सारे मोस्टली क्या होंगे, प्रैक्टिकल। सेकेंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन में देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ए एंड बी। मार्क्स वेटेज क्या होगा सर, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी 5 ईच, 6, 4 ऐसा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार हमको 7, 3 भी पूछा जा सकता है और 8, 2 भी पूछा जा सकता है। अगेन नॉर्मली बोथ ऑफ देम विल बी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये भी प्रैक्टिकल होगा, ये भी प्रैक्टिकल होगा मोस्टली।
अगेन एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक थियरी क्वेश्चन होगा, और अगर एक थियरी क्वेश्चन होगा तो उसका मार्क्स वेटेज कम रहेगा। कम मार्क्स वाला वेटेज वाला जो होगा ना, दैट विल बी थियरी क्वेश्चन, और ज्यादा वेटेज वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये हो गया सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में वो लोग हमको क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ए बी सी और सी ऐसा पूछते हैं, ए बी सी और सी। यानी क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, पहले दो में ऑप्शन नहीं मिलेगा। वेटेज क्या होगा सर, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। टोटल कितना हो गया वापस 10, और 10 का बाइफर्केशन क्या होता है, 4 4 2 2, और ये 2 2 में ही हमारे पास चॉइस है। और ये सारे के सारे क्या होंगे फ्रेंड्स, थियरी क्वेश्चंस। ऐसा करके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, थियरी हो ना। कितने मार्क्स का कंपलसरी थियरी है, कितने मार्क्स का कंपलसरी थियरी है, एनीबडी कैन टेल मी। 10 मार्क्स। और कोई आंसर है किसी का? मेरा क्वेश्चन है कितने मार्क्स का कंपलसरी थियरी है, कंपल्सरी और उसमें आ जाए तो कंपलसरी थियरी कितने का है, 0। किती करी सको ना करो। तो अभी के पेपर स्टाइल के मुताबिक, अभी के पेपर स्टाइल के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं, और उस केस में हमारा पूरा का पूरा थियरी क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा अभी के मुताबिक। पर ऐसा फेयर चांसेस है, फेयर चांसेस है क्या, सेकेंड थर्ड उसमें ए बी उसमें से ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेट्स से आप ये 4 में से एक क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसा फेयर चांसेस है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है लेट्स से दैट मे बी फ्रॉम वन ऑफ द चैप्टर इन विच यू आर वीक, और दैट मे बी वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इस वजह से वो फोर्थ क्वेश्चन करना प्रेफरेबल हो जाता है। और दूसरा देखो विश्व क्या होता है, ये जो थियरी के क्वेश्चंस होते हैं उस पे अगर हमने रेलेवेंट आंसर लिखा ना तो हमको पूरा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे बीकॉम वाला सिचुएशन नहीं है कि मार्क्स कट ही जाएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा यहाँ पे नहीं है। सो यू विल बी गिवन फुल मार्क्स इफ एट ऑल यू हैव रिटर्न प्रॉपर आंसर। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास स्कोप है पूरा आंसर लाने का। यहाँ पे भी मेरा सजेशन ऐसा है कि सपोज फॉर दिस 6 मार्क्स यू आर कॉन्फिडेंट, सपोज फॉर दिस 6 मार्क्स यू आर कॉन्फिडेंट इन कंपेरिजन टू लेट अस से दैट से यहाँ पे जो एक 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए। दूसरा ऑनेस्टली फ्रेंड्स, वंस अपॉन अ टाइम ऐसा होता था कि कॉस्टिंग और एफएम दोनों साथ में आता था, पहले ऐसा होता था कॉस्टिंग और एफएम। तो उसकी वजह से क्या होता था कि टाइम का स्केर्सिटी रहता था। हावेवर अभी तो क्या है कि एफएम और एसएम साथ में है, जिसकी वजह से टाइम का स्केर्सिटी रहता नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, राइटिंग थियोरी आंसर्स विल ऑलवेज टेक योर लेस टाइम। प्रैक्टिकल में क्या हो सकता है, आपके मार्क्स दैट इज आपका टाइम वहां पे ज्यादा जा सकता है। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये एक थियोरी में आपको सब कुछ आता है वो लिखेंगे ना तो भी टाइम बचेगा आपके पास। सो दिस इज द वे द थियोरी इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू इन एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन का पेपर स्टाइल है। चलो किसी को वापस समझना है कोई पॉइंट, ठीक है ना? हाँ मैं लिखवा देता हूँ। हाँ ના એ તો એને બી પાર્ટમાં છે પાર્ટમાં સો નેક્સ્ટ सॉरी वापस बोला। સર મેં કહું છું કે એફએમ ના 1 to 4 થાય તો એસએમ ના 5 to करेक्ट करेक्ट, પણ પેપર તો અલગ અલગ આપે છે ना ना एक पेपर है, ડીગ્રી ને જીએસટી માં કેમ આપે છે અલગ અલગ પેપર આપે आम एक पेपर है। एक जो है ना
हाँ ये तो क्वेश्चन लेट अस सी। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जामिनेशन का पेपर जिसकी वजह से आपको आइडिया आ जाएगा। सचिन स्क्रीन आपको विजिबल है ना बराबर से? देखो पार्ट 1 मल्टीपल केस सिनारियो। हाँ इन दैट देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है, यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। यानी अपने को क्या दे रखा, अपने को दे रखा है डेट से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं से फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। ये देखो एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो कांस्टेंट है, एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन। और हमको क्या जो नॉर्मली हमको क्वेश्चंस पूछते ना वैसा हमको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है। कितने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो हर एक का वेट कितना 2 मार्क है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। तो क्या हो गया 5 टू 10 मार्क्स। ठीक है, नहीं 10 मार्क का ये पहला क्वेश्चन होगा, ऐसा समझ सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से नया इंफॉर्मेशन और हमको क्या दे रखा है डेट से देखो एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। 7 भी एक ही क्वेश्चन है और 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था ना आपको 7 क्वेश्चंस कितने होंगे 2-2 मार्क के। तो 7 टू 14 प्लस 1 15। ऐसा करके देखो 15 मार्क हो गया। यहां से केस सिनारियो 2 ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, ये क्या होगा ऐसे बराबर है ना। देखो पता चला। अभी इन लोगों ने सजेशन आंसर्स में भी क्या करते हैं लोग, तो हमको सिर्फ आंसर की ही देते हैं, हमको प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर देते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है ना, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इसलिए वो लोग भी देते नहीं है। चलो उसके बाद देखो पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे जो नॉर्मल है। अच्छा इंटर में और एक अच्छी चीज क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ बराबर है ना, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है बराबर। जैसे फाउंडेशन में क्या होता था कि नेगेटिव मार्किंग होता था, वो आपने स्टेज क्लियर कर दिया, अभी नेगेटिव मार्किंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी ना, मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी और 2, 3, 4 में से क्या करने का है कोई भी 2 क्वेश्चंस करने। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के हैं आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। हाँ ठीक है ना।
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो लिखेगा इसकी बात कर रहे हैं, पर वो तो अपने तो उस कैटेगरी में फॉलो होते नहीं है। अपने को जो बोला गया वही करे वाले। हाँ, यस यस यस। क्वेश्चन नंबर देखो, पहला क्वेश्चन 5 मार्क का, उसका इंटरनल बाइफरकेशन है। सेकंड क्वेश्चन भी 5 मार्क का, उसका देखो इंटरनल बाइफरकेशन है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क का है। थर्ड क्वेश्चन भी देखो 5 मार्क का, यानी क्या हुआ, 5 5 5। ये 5 अभी पेपर स्टाइल के ऊपर फोकस करेंगे, अभी पेपर स्टाइल के ऊपर फोकस करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हुआ, 5 5 5, उसकी जगह 5 6 4 ऐसा भी हो सकता है। इन टोटल क्या होगा, 15 मार्क का क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी इट इज 7, सो 2a7 है, तो 2b कितने का होगा, 2b कितने का होगा, 3 मार्क का होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2b कितने मार्क का है, 3 मार्क है ना। 7 + 3 क्या हो गया, 10। यस नो। चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर की स्टाइल के ऊपर फोकस करने का है, क्वेश्चन के ऊपर नहीं। थर्ड क्वेश्चन में देखो वापस 7 और 3 है, 7 और 3 की जगह 8 2 हो सकता है, ठीक है ना। अभी तक 9 1 पूछा नहीं है, 5 5 भी हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो थियरी क्वेश्चन है, जिसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसमें वापस 3 क्वेश्चंस होंगे, 4 4 2 चलो ठीक है, तो 4 4 2 2 पता चला ना। सी क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हो कि ऑप्शन है, पता चला। सर तो ऑटो पेपर बदली जाएगा इस बार, ऑटो लेंगी मन में तो हंस हुआ कैलकुलेशन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट रखेंगे जिसमें आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। वी आर गोइंग टू अरेंज 3 मॉक टेस्ट। पर सर अन्य टाइम पर बदली जाए तो ध्यान ना बदले। हम लोग बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं और हम लोग रीजनेबली मान सकते हैं, और एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के स्टाइल के मुताबिक हम लोग इंस्टीट्यूट की स्टाइल के मुताबिक ही करेंगे मॉक टेस्ट, सो डोंट वरी। सुधर Institution में time ઉપર થશે. Institution જે રીતે લે examination એ રીતે જ લેશે અહીંયા એવું કીધું. ત્રણ લેવા છે, 3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट होंगे। एंड ऑनेस्टली देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस के जिसमें हमने 4 मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया है। लेवरेज ओपन करके दो, लेवरेज ओपन करके
બધું જ આવશે, ચિંતા ના કરો તમે. चलो हाँ, हम लोग अभी शुरू करेंगे थियरी से, क्लास 4 पेज नंबर 1, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5 हाँ, पेज नंबर 1 यहां से देखेंगे. ये ना थियरी के क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए थे ना. चलो पेज नंबर 1 ओपन करो. उसमें 5 What do you understand by the business risk and what do you understand by the financial risk? That is the question. तो यहाँ पे हमको पूछा दैट्स द बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में आप समझाइए. चलो क्लियर विद द क्वेश्चन. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग. पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं, दैट इज बिफोर वी रीड आंसर. देखो बिजनेस रिस्क का मतलब हम लोग क्या समझेंगे. वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हमारा अनसर्टेनिटी रहता है with respect to the earning in the business, that is considered to be the business risk. We understand that there can be uncertainty with respect to the, like we understand that the product that we sell, customer का demand change हो जाएगा, या तो competitor का entry होगा, या तो suppliers का cartel होगा जिसकी वजह से raw material का cost बढ़ सकता है, workers का कुछ ऐसा strike हो सकता है. That is considered to be the business risk. और financial risk तो बहुत simple है. We understand that से जो भी हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द फाइनेंशियल रिस्क. जो भी हमारा डेट फाइनेंसिंग होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है. सो लेट अस रीड द कंटेंट ऑफ द आंसर. नेक्स्ट पेज पे आंसर है उसका. बिजनेस रिस्क, इट इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट इन विच the firm has to operate, and the business risk is represented by the variability of the operating income. Variability in the operating income का मतलब क्या होगा कि हमारा सेल्स कम हो जाएगा, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा ऑपरेटिंग इनकम कम हो जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज रिफ्लेक्टिंग, है ना. यहाँ पे वेरिएबिलिटी का मतलब क्या समझने का, दैट से जो चेंज होने वाला है वो. और चेंज में हम लोग ऐसा समझते हैं लॉजिकली दैट से देयर इज अ रिडक्शन, उसका जो चेंज है. Revenue and expenses are affected by the demand of the firm's product, variation in the prices, and the proportion of the fixed cost in the total cost. देखो proportion of the fixed cost in the total cost के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं लॉजिकली दैट से बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, दैट फिक्स कॉस्ट का proportion जितना ज्यादा होगा उतना हमारे बिजनेस के लिए रिस्क ज्यादा होगा. उसकी बात करते हैं वो लोग. We understand that say if at all say there is a reduction in the business, then in that case we are going to face an issue in that. उसकी बात कर रहे हैं. Second is a financial risk. It is a risk borne by the shareholder when firm uses debt in addition to the equity financing. तो जब भी हम लोग डेट फाइनेंसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द इक्विटी फाइनेंसिंग, तो ये रिस्क होता है. Generally, a firm should neither be exposed to the high degree of that is a business risk and low degree of the financial risk or vice versa. यानी इन शॉर्ट वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं दैट अगर बिजनेस का रिस्क हमारा ज्यादा है, देन इन दैट केस हमको फाइनेंस का रिस्क इतना ज्यादा नहीं रखना चाहिए.
Let us come back to the पेज नंबर 199। हम लोग पेज नंबर 199 पे वापस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन का पेज नंबर लिखा है उन्होंने 17। सो लेट अस ओपन अवर पेज नंबर 17। इज इट ओके? उसमें से सेम ही क्वेश्चन है। हाँ देख लेते हैं बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने नवंबर 12 में पूछा था, 17 नंबर का पेज है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 का सी। देखो क्वेश्चन नंबर 7C, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल रिस्क। तो सेम ही है जो हमने आगे कवर किया। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हाँ 21 पेज नंबर 21। इन दैट कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7C। Operating risk is associated with the cost structure, whereas say the financial risk is associated with the capital structure. Critically examine the statement. तो सेम ही आंसर उन्होंने दिया है। तो बेसिकली क्या है, that's the way the question is formed is different, but the answer is they are expecting the same। ठीक है, पेज नंबर 21 ओपन करने का है। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? चलो नवंबर 14 पेज 28। पेज नंबर 28 के ऊपर कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सेम ही क्वेश्चन है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7? देखो तो 39, 42, 85 सब में देखो सेम है, अलग अलग चेक कर लो नहीं। 39 में सेम, 42 भी सेम है, 85 में अलग है। तो 85 वाला देख लेते हैं। सर आपको बोल देना था इम्पोर्टेंट पॉइंट है कर ही देना। साव हवे दिखाई दे इसमें। उसमें बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 3। चलो लेट अस सी। हाँ let us see next question। हाँ explain in what ways financial leverage operates as double-edged sword। पहले हम लोग थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी रीड द कंटेंट। ठीक है ना? हाँ देखो ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं लेट्स से भाई जो फाइनेंशियल लेवरेज है, या तो हम लोग बोल सकते हैं इवन ऑपरेटिंग लेवरेज या तो कंबाइंड लेवरेज, सबके लिए सेम ही है कॉन्सेप्ट। लेट्स से इट मे बी advantageous to us also and it may be say unfavorable to us also। ये फेवरेबल कब होता है कि जब हमारा बिजनेस अच्छा हो रहा है, करेक्ट है। जब हमारा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है देन इन दैट केस इट इज गुड। व्हाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से हमारा जो फिक्स कॉस्ट है ना वो सेम ही रहता है एंड वी आर एबल टू इंक्रीज अवर अर्निंग पर शेयर और वी आर एबल टू इंक्रीज अवर EBIT एट अ हायर रेट। दैट इज द वे इट इज फेवरेबल फॉर अस। At the same time, that it is unfavorable to us in a situation where the sales is falling down, in a situation wherein the operating income is also falling down। उस केस में क्या होता है, लेट्स से ये जितना लिवरेज ज्यादा होगा से उतना हमारे लिए
नुकसान ज्यादा होगा। सो डबल एज स्क्वाड का मतलब क्या है? दैट से इफ एट ऑल आई एम फाइटिंग विद समवन से विद स्क्वाड, दैट इज से तलवार से मैं किसी से लड़ रहा हूं, मैंने अगर उसको मार दिया देन इन दैट केस मैं जीत जाऊंगा। पर अगर गलती से मुझे लग गया देन इन दैट केस से आई विल बी हर्ट। इसलिए ऐसा बोलना चाहता है डबल एज स्क्वाड। आपने सामने मारा देन इन दैट केस वो आदमी मर जाएगा, और अगर आपको खुद को लग गया देन इन दैट केस आप हर्ट होंगे, इसलिए ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है। चलो लेट अस रीड द आंसर and see one more thing that I want to explain you very importantly is एग्जामिनेशन में ये सेम लैंग्वेज लिखना बिल्कुल ही जरूरी नहीं। यू हैव टू राइट द लैंग्वेज एज पर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। देर विल बी सर्टन क्वेश्चंस की जहां पे मुझे ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा दैट से ये लैंग्वेज हमको यूज करना जरूरी है, तो मैं आपका दैट इज आई ड्रॉ योर अटेंशन। अदरवाइज से नॉर्मली यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर विच इज से like near to or which gives the same explanation which they want to give. चलो when the cost of the fixed cost funds is less than the return on investment, the financial leverage will help to increase return on equity and EPS. ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं दैट से अगर हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है फॉर एग्जांपल 15%, यानी हम लोग बिजनेस से कमा रहे हैं 15%, और अगर हमारा इंटरेस्ट का रेट है सपोज की 12%, तो वी अर्न एट 15%, हमारा कॉस्ट है 12%, तो ऊपर का जो अर्निंग होगा दैट विल गो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रिवर्स है, हम लोग कमा रहे हैं 15% से और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेट से हम लोग कम रहे हैं, इस वजह से इक्विटी होल्डर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाएगी। The firm will also be benefit from savings of tax on interest on debt etc. यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं डेट से इंटरेस्ट के पेमेंट के ऊपर हमको टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है। However, when the cost of the debt will be more than the return, it will affect the return on equity and EPS unfavorably. As a result, the firm can be under financial distress. Financial distress का एक मीनिंग ऐसा होता है that say you will be in a trouble. Distress is an English word which indicates that आप disturb हो या तो you are in a panic situation, उसको distress बोला जाता है। तो financial distress का मतलब ये है that say you are under some pressure, ऐसा कुछ। Therefore, the financial leverage is known as double-edged sword. Sword का मतलब क्या? तलवार, ठीक है ना। डबल एज का मतलब क्या? दोनों तरफ दैट इज से होता है, इसकी वजह से धार दोनों तरफ होता है, यानी सामने वालों को मारा तो यू फील दैट से भी बहुत अच्छा हुआ, वो गलती से आपको लग गया देन इन दैट केस ऐसा उनका मीनिंग है। हाँ देखो, तो अभी लिवरेज पे कुछ बाकी है, हो गया। चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ यू कैन।